आज हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये फर्स्ट सेट है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। सो स्टार्ट करते हैं टाइप वैल्यूज एंड वेरिएबल्स के क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जावा कोड और जावा स्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड यूजिंग फर्स्ट वन इज RMI, that is a remote method invocations. B is a triggering events, C is a procedure and D one is a function or method. So हर एक जो जावा कोड होता है that can be called by using function or method. ठीक है. So JavaScript code can be called by making function call to the element on which JavaScript has to be run. Second, the type of variables that is volatile is known as the type of variable that is volatile is known as a mutable variables. ठीक है. The type of variable that is volatile is known as a mutable variable in JavaScript. मीन्स वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड और कॉल्ड म्यूटेबल वेरिएबल्स और म्यूटेबल वेरिएबल टाइप्स. ठीक है. सो जो भी प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं जावा स्क्रिप्ट में वो हमारे म्यूटेबल नहीं होती हैं. ओनली ऑब्जेक्ट एंड एरे आर म्यूटेबल. सी थर्ड क्वेश्चन, अ हेक्साडेसिमल लिटरल्स बिगिन विथ. तो OX और OX में से कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, सो वी कैन से दैट बोथ मीन्स डी ऑप्शंस बोथ OX और OX. either it will be small x or capital X. Next one, the advertisement, sorry, the generalizations or the generalized syntax for a real number representations is. Next one, the generalized syntax for real number representation is. रियल नंबर का जनरलाइज सिंटैक्स क्या है? तो डिजिट्स, उसके बाद फिर डॉट लगा हुआ है डिजिट्स. ठीक है. सो दिस वन ए ऑप्शंस, पहला डिजिट नॉर्मल रहेगा, उसके बाद हमारा डॉट के साथ डिजिट लगा रहेगा. सो दिस वन इज द रियल नंबर जो रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ जनरलाइजेशंस. नेक्स्ट, JavaScript, when there is an indefinite or infinite value during an arithmetic computations, then A options print an exceptions error, B print an overflow error, C display infinitive, or D print the value as such. Means when we use we use indefinite or infinite values, then this will be display infinitive. C options is the right options, it display infinitive. 6. Which of the following is not considered as an error in JavaScript? Syntax error, missing or semicolons, division by zero, or missing of bracket. Then division of zero is not considered as an error in JavaScript. ये सिंपल हमारा क्या रिटर्न करेगा? इनफाइनाइट और निगेटिव इनफाइनाइट. जैसा भी हम वेरिएबल लेंगे, अगर पॉजिटिव वेरिएबल्स होगा तो हमारा इनफाइनाइट होगा और निगेटिव वेरिएबल होगा तो निगेटिव इनफाइनाइट होगा. ठीक है. हाँ, लेकिन जब जीरो डिवाइड बाय जीरो करेंगे, then 0 divided by 0 does not have a well defined values, and the result of this operations is the special not a number values printed as a NaN. Satwa questions, the escape sequence backslash f stand for, then this one is a form feed. D options है backslash f is used or backslash f stand for form feed. 8वां क्वेश्चन है द स्निपेट दैट हैज टू बी यूज्ड टू चेक इफ अ इज नॉट इक्वल टू नल इज.
if a not equal to null, if not equal to a, if a not null, D है if a not assignment operator. This one is the assignment operator and this one is the comparison operator. So not equal to null, a not equal to null, so this one is the comparison operator. So D options is a correct options. If a not and this one is a is equal to operator, means comparison operator. Next, the statement a इज इक्वल टू अगेन इज इक्वल टू बी रिफर टू, यहाँ पे 3 बार इक्वल टू का साइन बनाया गया है. सो व्हाट दिस वन इज कॉल्ड, बोथ एंड बी आर इक्वल इन वैल्यूज एज वेल एज इक्वल इन टाइप. ठीक है, तो ट्रिपल इज इक्वल टू इज नोन एज अ स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, and this one is only true if the operands are of the same type and the contact match. 10वां क्वेश्चन है, assume that we have to convert false, that is a non-string, to string. The command that we use is, without invoking the new operator, a false dot to string, b है string false, c है string new variable is equal to false, assignment operator is equal to false, and d है both false to string and string false. तो यहाँ पे हम दोनों यूज कर सकते हैं, फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग के अंदर फॉल्स पैरामीटर पास करके ये भी मेथड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड. एक फंक्शन लिया गया है, उसका नाम किया गया है, फंक्शन का नाम कंपेयर है. इसके अंदर एक वेरिएबल नम नाम का है जो इंटीजर टाइप है और एक वेरिएबल हमारा है कैरेक्टर और इसकी वैल्यू हमने 2 असाइन की हुई है. बोला है इफ ए कंपैरिजन ऑपरेटर बी देन रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स. तो नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ये कैरेक्टर बी असाइन किया गया है, यहाँ पे इंटीजर ए असाइन किया गया है, नंबर हमारा इंटीजर है और बी कैरेक्टर, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं. बट यहाँ पे कोई कोटेड कॉमास का यूज नहीं किया गया, ना ही तो सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर लिखा है, ना ही डबल कोटेड कॉमा के अंदर लिखा है. सो दिस वन आल्सो रीड एज इंटीजर वैल्यूज, मींस सिंपल बी. तो यहाँ 2 और 2 का कंपैरिजन होगा तो रिटर्न हमारा ट्रू ही करेगा. नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड. इक्वल टू का फंक्शन बनाया गया है, एक वेरिएबल नंबर लिया गया है जिसकी वैल्यू 10 है और बोला इफ नम स्ट्रिक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर 10 रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स. तो भी हमारा ट्रू ही आएगा. ठीक है, ट्रू क्यों आएगा, मीन्स इफ स्ट्रिक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर इज only true if the operands of the both or operands are of the same type and the content should also match. Next one है, what will be the following output of the following JavaScript code. फिर से compare नाम का फंक्शन लिया गया है, यहाँ पे int a है, int b है. if a dot to string, ठीक, अब यहाँ पे देखिए a डॉट टू स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिक्टली कंपेयर किया गया है b से. दो a की साइज हमारी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, दोनों हमारी मैच कर जाएंगे, रिजल्ट इज अ ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, a हमारा जो था वो इंटीजर था, मींस, और b जो है हमारा एक कैरेक्टर है या फिर स्ट्रिंग है. लेकिन जैसे ही हमने a डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया, देन हम एक इंटीजर को कन्वर्ट कर दे रहे हैं स्ट्रिंग में. a जो हमारा इंटीजर था वो हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है स्ट्रिंग में, और उसके बाद हमारा स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया गया है. और ये ट्रू तभी होगा अगर दोनों ऑपरेंड्स हमारे जो हैं
वो सेम टाइप के हों और उनके कंटेंट भी सेम हो। तो यहाँ पे देखिए ए नाम का जो वेरिएबल था इनिशियल में इंटीजर था, लेकिन डॉट टू स्ट्रिंग का यूज करके उसको हमने स्ट्रिंग में बदल दिया। बी भी हमारा स्ट्रिंग है, दोनों हमारे सेम डेटा टाइप के हो गए और इनके अंदर जो वैल्यू थी वो भी हमारी दोनों सेम हो गए, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। एक इंटीजर ए लिया गया है और असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो ए की वैल्यू को दो से असाइन नहीं किया गया है, ए की कुछ वैल्यू होगी जिसको दो के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद एक वेरिएबल बी लिया गया है जिसके अंदर हमने 4 डाला है, और उसके बाद एक वेरिएबल आंसर टाइप का है जिसके अंदर हमने क्या किया, ए प्लस बी किया और प्रिंट निकाला। तो आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो ए और बी को ऐड कर देंगे, 4 और 2 को 6 उत्तर मार देंगे, आंसर हमारा 6 होगा। बट ये हमारा एरर जनरेट करेगा और एरर ये जनरेट करेगा कि ए की कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, तो व्हाट विल बी द बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए। हमने जो ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है ए को 2 के साथ, ए के लिए 2 वैल्यू असाइन नहीं की गई है, ठीक है। सो आंसर इज अ एरर। अगला, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इफ इंट a इज इक्वल टू 1, if a not equal to null return 1, else return 0। तो a की वैल्यू 1 है, नॉट इक्वल टू नल है, तो रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा। आंसर इज ए। अब अगला हम क्वेश्चन जो देखेंगे वो एक्सप्रेशन और ऑपरेटर से रिलेटेड होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया और उस वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग 1 और इसके अंदर 1 2 3 डाला गया, दिस वन इज अ स्ट्रिंग। और एक वेरिएबल लिया गया इंट वैल्यूज 1 2 3, ठीक है। उसके बाद अलर्ट किया गया, स्ट्रिंग 1 को इंट वैल्यू के साथ ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग 1 आपका क्या है, 1 2 3, फिर इंट वैल्यू 1 2 3 है। यहाँ पे हमने अलर्ट करके कॉनकैटिनेट कर रहे हैं, तो एक बार 1 2 3 आएगा, फिर अगेन इंट वैल्यू वाली 1 2 3 आएगी, दोनों वैल्यू कॉनकैटिनेट हो जाएगा। तो 1 2 3 अगेन 1 2 3, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a function definitions expressions can be called as, a function definition expression can be called as, डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं, तो फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन लिटरल्स या फिर फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन। हियर वी ओनली डिफाइन द फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज नोन एज अ फंक्शन लिटरल। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन। तीसरा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्राइमरी एक्सप्रेशन इज स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन, basic expressions containing all necessary function, contain variable reference alone, contain only keywords. So a property of primary expression is standalone expression. Standalone expression. Next one, consider the following JavaScript statement. Variable है text नाम का, इसके अंदर वैल्यू असाइन की गई है टेस्टिंग कॉलन 1 2 3, सैंपल टेक्स्ट है। उसके बाद एक पैटर्न लिया गया है, उसमें डी प्लस बैक स्लैश जी, एक बार देखिए ये बैक स्लैश है फिर फॉरवर्ड स्लैश है फिर बैक स्लैश जी, एंड दिस वन इज अ मैचेज ऑल इंस्टेंस ऑफ वन और मोर डिजिट। इन ऑर्डर टू चेक इफ द पैटर्न match with the string text, this pattern match with the string text, the statement is text comparison operator pattern or text dot equal to pattern, text
डॉट टेस्ट पैटर्न और पैटर्न डॉट टेस्ट टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पे देखो कि कंपेयर करना है पैटर्न को टेक्स्ट के साथ, सो वी राइट पैटर्न डॉट टेक्स्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, the primary expressions of calling or executing a function or method in JavaScript is called. The expression of calling or executing a function or method in JavaScript are called invocations expressions. C option है invocation expression. Next one, what kind of expression is new point 2, 3? Primary expression, object creation expression, invocation और constructor calling expressions। ठीक है, तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सप्रेशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सप्रेशन क्या होता है? दिस विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड इन्वोक अ फंक्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द operator is used to test if a particular property exists or not? So in operator is used whether a particular property exists or not. बेसिकली ये लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर यूज किया जाता है टू ट्रैवर्स द एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, among the following which one is the ternary operator? तो टर्नरी ऑपरेटर हमारा क्या है? दिस वन, क्वेश्चन मार्क कॉलन। अगर कंडीशन में दिस वन सिंपल वर्क लाइक एज अ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन हमारा सही होता है तो क्वेश्चन मार्क के आगे वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, और अगर एक्सप्रेशन हमारा गलत होता है तो कॉलन के आगे वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, an expression that can legally appear on the left side of an assignment expressions is a well-known explanation of variables, properties of object and element of array. They are called properties or prototype or L value or definition. So left side of an assignment expressions is known as a L value. ठीक है, L value means an expressions that can legally appear on the left side of an assignment expressions. वेरिएबल्स की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, एलिमेंट ऑफ एरे के अंदर एलिमेंट की बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे एल वैल्यूज ही होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड स्निप्ट? एक्स की वैल्यू क्या है? -y का अपोजिट है नॉट, और डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू उल्टा पढ़ेंगे, जेड की वैल्यू y में असाइन हुई, y की वैल्यू x में असाइन हुई, और x की वैल्यू w में असाइन हुई। देन q की वैल्यू है a, देखिए a टर्नरी ऑपरेशन आपका यूज किया गया है, a फिर क्वेश्चन मार्क b कॉलन c क्वेश्चन मार्क d कॉलन e क्वेश्चन मार्क f कॉलन g। इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन यूज किया गया है। तो पूछा गया है कि कौन सा सही है। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? फंक्शन लिया है, फंक्शन का नाम है आउटपुट, और उसके अंदर पैरामीटर ऑप्शन डाला गया है, देन रिटर्न कराया गया ऑप्शंस, अगर सही है तो एस, अगर गलत है तो नो,
उसके बाद बुलियन आंसर इज इक्वल टू ट्रू, कंसोल डॉट लॉग आउटपुट आंसर। तो इसका क्या होगा आंसर? एस। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? एक वेरिएबल लिया गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे लेंथ 20 लिया, हाइट 35 लिया, उसके बाद बोला इफ ब्रेड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर फॉल्स देन ऑब्जेक्ट डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू 12। कंसोल डॉट लॉग डॉट ऑब्जेक्ट ब्रेथ की वैल्यू पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू कितनी असाइन हो रही है? 12। 12 इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फंक्शन लिया हुआ हाइट नाम का, इसके अंदर वेरिएबल हाइट की वैल्यू पास कराया है। वेरिएबल टाइप हाइट, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 190 है तो टॉल हो प्रिंट करेगा, एल्स क्या प्रिंट करेगा? शॉर्ट। ये क्या प्रिंट करेगा? ऑब्वियसली हमारी हाइट की वैल्यू 123.56 है, जबकि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 190 होता तो टॉल प्रिंट करे, और अगर नहीं है तो शॉर्ट प्रिंट करे। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड विल बी शॉर्ट। अगला, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? स्ट्रिंग ए है हाई, स्ट्रिंग बी है देयर, अलर्ट किया गया, दोनों को कॉन्कैटिनेट किया गया, तो आउटपुट विल बी हाई देयर। सी ऑप्शंस, हाई देयर। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है प्लेस नाम का, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट असाइन किया गया है, अगर सही होता तो ऑब्जेक्ट डॉट प्लेस करे, एल्स हमारा इटली करे। रिटर्न क्लीन को कॉन्कैटिनेट किया गया प्लेस के साथ, और प्लेस इंडिया, तो आउटपुट क्या होगा? क्लीन इंडिया। क्लीन और प्लेस हमारा क्या है? प्लेस की वैल्यू इंडिया है, तो क्लीन प्लस इंडिया हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो क्लीन कॉलन ऑपरेटर और कॉन्कैटिनेट करेगा इंडिया के साथ। नेक्स्ट में एक पैराग्राफ लिया है जिसकी आईडी डेमो है, उसके स्क्रिप्ट कोड चलाया गया है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया माई फंक्शन। उसके बाद बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो इनर डॉट एच टी एम एल मैथ डॉट एब्सोलूट वैल्यू -7.25। तो एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी? माइनस हो या प्लस हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्लस ही कंसीडर करेगा, सो करेक्ट आंसर इज 7.25। नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या किया गया? मैथ डॉट क्यूब रूट 125 का पूछा गया है, सीबीआरटी मींस क्यूब रूट 125, तो ऑब्वियसली 5। 5 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5 होगा। इस केस में हमारा क्या पूछा गया है? यहाँ पे हमारा मैथ डॉट एसीओएस मीन्स, एसीओएस मीन्स क्या? एक्रोसाइन। तो यहाँ पे हमारा 0.5 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये आर्कोसाइन हमारा 1.047। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट से, JavaScript is an which type of language? So JavaScript is a object based language। पूरी की पूरी कहानी हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। So JavaScript is a object based language। Next one, what will be the output of the following JavaScript code? वेरिएबल a 5 है, b का 1 है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट a 10 with object alert 10, तो आउटपुट will be 1। A conditional expression is also called as a immediate if, conditional statement also known as a immediate if। यहाँ पे हमारे दो कोड दिए गए हैं। कोड 1 है कि नंबर की वैल्यू 10 से असाइन हो रही है और नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक जा रहा है, मीन्स 10 से लेकर के 1 तक राइट करेगा। और दूसरे में वाइल नंबर ग्रेटर देन 1, देखिए इनिशियल में नंबर की वैल्यू 10 है,
और उसका वाइल कंडीशन के अंदर बोल रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, बाद में हमारा क्या लगा दे रहा है, प्लस प्लस ऑपरेटर लगा रहा है। तो 10 से शुरू करेंगे, 11 जाएंगे, 12 जाएंगे, 13 जाएंगे, तो कौन सा कोड करेक्ट है? पहला ही कोड करेक्ट है। यहाँ पे तो हमारा इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता चला जाएगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। लेस देन हमारा 1 है, लेस देन कभी 1 आ ही नहीं सकता अगर प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कोड 1 करेक्ट है, कोड 2 रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ब्लॉक स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? तो कंडीशनल block that contain a single statement, both conditional block and a single statement, block that combine multiple statement into a single compound statement. So block statement is a Java script is block that combine multiple statement into a single compound statement. D option is the correct options. Next one, when an empty statement is encountered, a JavaScript interpreter ignore the statement, prompt the complete statement, throws an error, show a warning. तो जब भी when a empty statement is encounter, then this will be ignore the statement. A option is the correct option. The where and functions are declaration statement. The where and functions are declaration statement. Here B option is the correct options. Next one है, in the following switch syntax, the expression is compared with the case label using which of the following operators? Switch expression statement. तो इसमें क्या है? Assignment comparison operator, equals, equal, strictly comparison operator. तो यहाँ पे क्या है कि हमारा equal option is sorry, strictly comparison operator is the correct answer. What happened in the following JavaScript code snippet? एक वेरिएबल लिया गया काउंट नाम का, 0 है, while count less than 10, then console dot log count और count plus plus. इनिशियल में काउंट की वैल्यू 0 है और लेस देन 10 तक जाना है, मींस 9 तक प्रिंट करेगा। तो ये हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ काउंट फ्रॉम 0 to 9 इन डिस्प्लेड इन द कंसोल. B options, the value of count from 0 to 9. Next one, the enumerations order become implementation depend and non-interoperable if the object inherit enumerable properties is the correct options.